নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বাৰাণসীত এবাৰ মোদী ভাৰ্চেছ মোদী, কিয়নো মোদীৰ অনুকৰণ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুকৰণ কৰি মিমিক্ৰি কৰি জনপ্ৰিয় হোৱা এগৰাকী ইউটিউবাৰ শ্যাম ৰংগিলাই এইবাৰ বাৰাণসীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব। মোদীৰ বিৰুদ্ধে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বাৰাণসীত, অৰ্থাৎ তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে এনেদৰে এইগৰাকী ইউটিউবাৰ শ্যাম ৰংগিলা। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিব শ্যাম ৰংগিলাই। মোদীৰ মিমিক্ৰি কৰি জনপ্ৰিয় হোৱা শ্যামে এইবাৰ মোদীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জনাব প্ৰত্যাহ্বান। বাৰাণসী লোকসভা সমষ্টিত মোদীৰ বিৰুদ্ধে দিব এইবাৰ মনোনয়ন পত্ৰ বা থিয় দিব শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু তাৰ বাবে সাজু হৈছে শ্যাম ৰংগিলা। ইউটিউবাৰ শ্যাম ৰংগিলাই 2022 চনত আৰম্ভ কৰিছিল ৰাজনৈতিক জীৱন। 2022 চনত ৰাজস্থানত আম আদমি পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিল শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু আপত যোগদান কৰিছিল যদিও এইবাৰ নিৰ্দলীয় হৈ নিৰ্বাচন খেলিব শ্যাম ৰংগিলাই আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব। চলিত সপ্তাহতেই মোদীৰ বিৰুদ্ধে শ্যামে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা। আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি এই ঘোষণা কৰিছে শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু কেতবোৰ বিভিন্ন মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইগৰাকী ইউটিউবাৰ শ্যাম ৰংগিলাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ শ্যাম ৰংগিলাই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে এই কাৰণেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হুবহু মাত উলিয়াই, অৰ্থাৎ মিমিক্ৰি কৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেদৰে কয় ঠিক তেনেদৰেই মাত উলিয়াই এইগৰাকী শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু মোদীৰ কথা মোদীৰ ধৰণ সকলোবিলাক অনুকৰণ কৰে শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু তাৰ পাছতেই জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আছিল এইগৰাকী শ্যাম ৰংগিলা, আৰু এজন সফল ইউটিউবাৰ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে শ্যাম ৰংগিলাই। আৰু তাৰ পাছতেই এইবাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিব বিচাৰিছে। মোদী ভাৰ্চেছ মোদী বুলি এইকাৰণেই কোৱা হৈছে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম লৈ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাত উলিয়াই মিমিক্ৰি কৰি জনপ্ৰিয় হোৱা শ্যাম ৰংগিলাই এইবাৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু লক্ষণীয় হ'ব বাৰাণসীৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাব এতিয়া শ্যাম ৰংগিলাই, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু তথাপিও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী শ্যাম ৰংগিলা, নিৰ্দলীয় হৈ যিহেতু নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগবাঢ়িছে শ্যাম ৰংগিলাই, আৰু তাৰ পাছত যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সামাজিক মাধ্যম যোগে জনাইছে এই কথা যে তেখেত সাজু হৈছে বাৰাণসীত এইবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব শ্যাম ৰংগিলাই। শ্যাম ৰংগিলাৰ মন্তব্য আছে, শ্যাম ৰংগিলাই কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो, तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ, और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनाव को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है, वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं,
वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं, तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, लड़ेंगे जीते। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूँ और आज आपसे मन की बात करने आया हूँ। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनावों को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है, वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा।